good morning to one and all present here on this auspicious occasion of investiture ceremony of our prestigious institution. I heartily welcome to our honorable guest of honor, Kumari Ranjita ma'am, the Assistant Commandant CRPF Palampur. I also welcome our honorable chairman sir and director ma'am, and Arun sir and ma'am, Aslin ma'am, and all my dear students. I welcome you all in this occasion. A warm regard or a warm greeting to all of you, as it is a famous saying that journey of 1,000 miles begin with a single step, and today is the very first step of our young leaders who are taking responsibility of conducting school's day-to-day routine in their shoulders. And I believe that our young leaders whom we are giving responsibility on this day will be a responsible and respected citizens of the country in the future, as these students are preparing themselves in this prestigious school for becoming a future citizen. And again, I congratulate to all the council members who are got very democratically selected in this entire process, and students of class 4 to 9 participated in selecting all these members. I congratulate all of them for being appointed as a whatever appointment they have got, and I assure school management that whatever commitment or dream or that mission and vision school management have for this school, entire school family, teachers, students will materialize your dreams, sir. Whatever mission we are having, that is darkness to light, will I am assuring you that our entire family will come up with flying colors to fulfill your this dream. Thank you once again. I welcome you, all the dignitaries and parents also. I welcome on this show so that you can witness this event, that students are getting responsibilities and they will be bearing the badges of the school council members or cabinet members, and parents will also feel proud, and we are all proud of our students. Thank you so much.
बेल्ट था उसके अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी, कंधों पे जिम्मेदारी। हाथ में फाइल मन में दम, मीलों मील चलेंगे हम, हर मुश्किल से टकराएंगे, टस से मस ना होंगे हम। दुनिया का नारा चले रहो, मंजिल का इशारा चले रहो। ये सोते भी है टेंशन आगे रहने की है, टेंशन मेहनत इनको प्यारी है, एकदम आज्ञाकारी है। दुनिया का नारा चले रहो, मंजिल का इशारा चले रहो। अरे क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों है? एग्जाम्स आ रहे हैं यार। हाँ तो इस बार भी टॉप करना है, 98% तो लाने ही है, फिर ये शहर की टॉप की कॉलेज में एडमिशन भी हो जाएगा और आगे की पूरी प्लानिंग सेट है। अरे डोंट वरी, एग्जाम्स भी अच्छे जाएंगे और हम टॉप भी कर लेंगे। थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। एग्जाम्स के डिप्रेशन में कोई लाइफ जीना भूल जाता है क्या? मेहनत दिल लगा के की है ना, तो उसका नतीजा भी अच्छा ही होगा। बस दिल पे हाथ रखो और बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। करके गोल सीटी बजा के बोल, लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, फोटो को करके गोल, फोटो को करके गोल सीटी बजा के बोल। सीढ़ी बजा के बोल भैया। आज रिजल्ट का दिन था, सब बच्चे अच्छे नंबर से पास हो गए थे, सभी बच्चे खुश भी थे, पर रिया बहुत ज्यादा ही अपसेट थी क्योंकि उसे अपने टारगेट जितने मार्क्स नहीं मिल पाए। 98 की जगह 96 मिले। शायद वो अपने टॉप के कॉलेज में नहीं जा पाएगी, शायद उसने जितने गोल सोचे थे वो अचीव नहीं कर पाएगी। यही सब सोच अब उसके दिमाग में डिप्रेशन का रूप ले रही थी। मुझ में बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लो जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ झूम लूं या ना लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। सॉरी मम्मी पापा, सॉरी बंटी एंड ऑल माय फ्रेंड्स, सॉरी बट मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाई। आई नो सबको मुझसे बहुत उम्मीद थी कि मैं 98% लेकर आऊंगी, जैसे सबको चाहिए था ना, वो टॉपर ऑफ द टाउन एंड टॉप की कॉलेज, वो सब मैं अचीव नहीं कर पाई। मुझ में अब सबको फेस करने की हिम्मत नहीं है। इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है ना ही आसान होता है, सारा खेल मानने का है। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है।
मोहब्बत की भी नजरों पे Very good morning, all of you. Honorable Chief Guest, Madam Ranjita, Directors of the school, Principal, teachers, and my dear students. First of all, I would like to congratulate all our young leaders who are going to be the member of the school cabinet of this institution. As you know, the school cabinet installation is the most important and first ceremony of the institution, because from the day one itself, we need a strong group of students who can support the school administration to run the school in proper manner. That is why we are selecting better than the best students of the school as the school cabinet members. On this occasion, I would like to congratulate all the parents also, क्योंकि आज आपके बच्चों को इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो गया, तो इस स्कूल का सबसे अच्छा विद्यार्थी है, इस स्कूल का सबसे अच्छा स्टूडेंट्स को ही हमने सेलेक्ट किया। और इसमें नेचुरली आप लोगों के लिए बड़ा गर्व की बात है, क्योंकि आपका बच्चा स्कूल कैबिनेट का मेंबर है, मतलब आपका मेहनत इसमें बहुत ज़्यादा है। और मेरा पूरा उम्मीद है स्कूल का जो पूरा संचालन में स्कूल कैबिनेट का बहुत बड़ा रोल है। As you know, some of you are going to be the head boy of the school, some are head girl, some are sports minister, discipline minister, different categories there. Whatever is your assignment,
in your area you have to support your students and the teachers to run different programs in a systematic way. You should stand as a bridge between the students and the teacher. हमेशा लीडर का एक क्वालिटी होना चाहिए, अपना स्टूडेंट्स का हर प्रॉब्लम स्कूल मैनेजमेंट के सामने, प्रिंसिपल के सामने, टीचर्स के सामने रखे उसका सॉल्यूशन निकालना है. जब तक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तब तक आप लोगों को बोलना है. Then only you can be a great leader. My dear students, campus is always giving excellent students as a leader. Always the great leaders are born from the campus. So this is an opportunity for you to prove yourself as a great leader of tomorrow. The leadership quality you are going to get throughout this 1 year. वो आपको करके दिखाना है आप एक अच्छा लीडर है. इसी के लिए आपको एक मौका दे दिया और इस मौके से आपको सीखना है कैसे एक अच्छा लीडर बन सकता है. And today you are the leader of St. George International School. Tomorrow, if God grace, you may be a great leader of nation. आप में से कोई प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है, आप में से कोई मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बन सकता है. उस क्वालिटी भगवान ने आपको दिया हुआ है, लेकिन आपको वो आइडेंटिफाई करना है. And a leader always should have some qualities. The most important quality is you should be a role model for others. दूसरा के सामने एक रोल मॉडल बन के हमेशा खड़ा होना है. Otherwise, you cannot be a great leader. People should respect you because of your quality, not because of your muscle or your power. आज हमारा देश में अच्छा लीडर का जरूरत है. आप किसी भी बच्चों से पूछे, किसी भी नौजवान से पूछे, कोई भी ये नहीं बोलेगा मैं कोई पॉलिटिकल लीडर बनना है. जो प्रॉमिसिंग बच्चे लोग हैं, जो पढ़ाई में अच्छा है, टैलेंटेड है, वो सब IAS, IPS, डॉक्टर्स, इंजीनियर और कोई बनना चाहता है. लेकिन कोई भी पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहता है, क्योंकि आज हमारा सिस्टम इतना खराब हो गया. पॉलिटिक्स में और राजनीति में ऐसे लोग आते हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है और जिनके पास कोई संस्कार नहीं है. सब लोग नहीं है, लेकिन आज हमारा सिस्टम है, उस सिस्टम को बदलना है हमें. That only you can do because you are the future of our nation. So my dear students, I would like to appeal to you all to be a great leader with quality. Try to be a role model. Always try to carry each and every student of this institution with you. अपने छोटे बच्चों को से बड़ा सिंपैथेटिकली प्यार से सपोर्ट करना है. बड़े बच्चों से हमेशा रेस्पेक्ट से बात करना है. This is a lesson you have to learn from today. And मैंने ये सबसे बड़ी एक चीज देखा है. यूजुअली हर स्कूल में, इवन भोपाल में हमारे सिटी स्कूल में बॉयज ज्यादा पढ़ता है, लेकिन हमारा स्कूल में आई थिंक गर्ल्स ज्यादा है इस इंस्टीट्यूशन में. एंड आई फील वेरी हैप्पी टू सी दैट. द स्कूल मैनेजमेंट आल्सो हैव ए पॉलिसी. वी आर नॉट चार्जिंग एनी एडमिशन फी फ्रॉम गर्ल्स चाइल्ड बिकॉज वी वांट टू प्रमोट गर्ल्स चाइल्ड. क्योंकि आप लोग गर्ल्स चाइल्ड को आगे बढ़ना है. आपका सामने बहुत सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल है मैडम रंजिता. वो अपने मेहनत से आज CRPF का असिस्टेंट कमांडेंट बन के एक लीडर के रूप में आपके सामने बैठा हुआ है. और आपको भी ऐसे सपने देखना है, मैं भी ऐसे बनेंगे. और हर गर्ल्स को अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है. टाइम हैज चेंज्ड नाउ. नाउ एवरी गर्ल शुड गेट अपॉर्चुनिटी टू बी ए ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ टुमारो. So my dear students, on this auspicious occasion, I will congratulate all of you on a special day because you are going to be the leader of this cabinet. Today you are going to take a pledge that I will maintain the discipline of this institution with a great sportsman spirit. वो हमेशा मेंटेन करो. स्कूल का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संचालन में आपका बहुत बड़ा योगदान है. हर प्रॉब्लम आपको स्पोर्ट्स टीचर के सामने, प्रिंसिपल के सामने, टीचर्स के सामने रखना चाहिए. अपने बच्चों को हर प्रॉब्लम आपको पूछ के समझ के आप अपना स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रख के उसका सोल्यूशन निकालना है. क्योंकि आपको मालूम है बहुत सारे इश्यूज स्कूल में आता है. कभी कभी वॉशरूम प्रॉपरली वॉश नहीं होता है, कभी स्पोर्ट्स आइटम स्कूल में नहीं रहता है,
और नीटनेस एंड टाइटनेस प्रॉपरली नहीं होता है, और किसी किसी क्लास में टीचर्स को बच्चों को पढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम्स आता है। ये सारे प्रॉब्लम बच्चे लोग टीचर से खुल के बोल नहीं पाता है। सो यू हैव टू discuss all these issues with the students and convey the problem to the principal or the management so that we can sort out the problem. And I am very happy to see that within 2-3 years the school is developing like anything. कोरोना काल में 2 साल में सब लोग घर पे बैठा हुआ था, इसके बाद अभी इस साल स्कूल में आ गया, स्कूल का ग्रोथ बहुत एक्सेलेंट हो गया। We got more than 80 to 90% growth in this year. That's a great achievement for this institution. और सबसे बड़ी बात है, इस कैबिनेट का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, CBSE का एफिलिएशन मिलने के बाद पहली बार आप लोग इस स्कूल का कैबिनेट मेंबर बन रहे हैं। That is also a great achievement for you because you can say with great proud. आज देखो आगे आफ्टर 10 years और 15 years इस स्कूल में आपको पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगा, इतना सारे बच्चे लोग रहेंगे, तब आपको बड़ा प्राउडली बोल सकता है मैं इस स्कूल का CBSE होने के बाद पहला कैबिनेट में मैं मेंबर था, मैं इस स्कूल का पहला हेड बॉय था, हेड गर्ल था। दैट इज ऑलवेज ए मैटर ऑफ प्राउड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इस स्कूल का एक एम्बेसडर भी है। आपका पर्सनालिटी, आपका डिसिप्लिन, आपका वे ऑफ टॉकिंग सब पब्लिक मॉनिटर कर रहे हैं। आप जब बस स्टॉप में खड़ा रहेंगे, जब आप लोग कभी भी कहीं भी जाएंगे, लोग आपको वाच करेगा। What is the personality of St. George students? You should always be a role model for St. George. You have to make the school proud. Your parents and the teachers and the school administration. That इस स्कूल का हर बच्चा संस्कार बहुत है, वे ऑफ टॉकिंग अच्छा है, बिहेविंग अच्छा है, और हर तरीके से CBSE का एक अच्छा CBSE स्कूल का स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलने वाले बच्चे लोग हैं, क्योंकि आपको देखे और लोग इस संस्था में आएंगे। So my dear students, on this auspicious occasion I would like to congratulate all my dear cabinet members who are going to be the leader of this institution today. And also I am very grateful to Madam Ranjita for her kind presence on this occasion. और आज सारे पेरेंट्स को मैं बधाई देना चाहता हूँ, और आज इस अवसर पे हमें बुलाया, और इसके लिए मैं ऑनरेबल प्रिंसिपल सर और स्कूल जो टीचर्स को भी थैंक्स बोलना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू। They are made. Now I am addressing to the head boy, Master Harshit Singh Yadav, and head girl Miss Ishita Dhanraj. I request the head boy and head girl to get ready for the march fast. You may kindly proceed to the stage.
level of discipline and perseverance. Now I am addressing to the Discipline Minister, Ms. Madhu Meena, and Assistant Discipline Minister, Master Rishi Meena, to get ready for the march past. To get ready for the march past. You may kindly proceed towards fire. Now I am requesting the Agani House Captain, Master Mahir Sheikh, to get ready for the march past. You may kindly proceed towards the Prithvi House Captain, Miss Harshita Lodi, to get ready for the march past. You may kindly proceed.
ऋषि मीना, शयान अहमद, माहिर शेख, आर्यन मीना, अर्शिता लोधी, दृष्टि आर्या। Take oath Take oath for the post of for the post of head boy, junior head girl, discipline minister, assistant discipline minister, Board Minister, cultural minister, Agni house captain, Akash house captain, Prithvi house captain, Brahmos house captain of St. George International School. of St. George International School. I solemnly promise I solemnly promise to be loyal to be loyal to my institution. to my institution. I promise I promise to maintain to maintain the discipline, the discipline, name, name, fame, fame, and dignity of the school. and dignity of the school. I will do my duties I will do my duties with my full effort with my full efforts and sportsman's spirit. and sportsman spirit. Jai Hind! Jai Hind! Thank you, Nandipati. Respected Mr. Babu Thomas and Mrs. Thomas, Mr. Arun, Mrs. Arun, all the respected teachers of this St. George International School, Diwanganj, all the caring staffs who are posted in this school, all the parents who are present here, and my dear student. Now all the students are very well known about what is the importance of this investiture ceremony. Means, suppose I am giving example of two groups. One group is of 100%, other is again of 100. If you keep two guides in one team and without guide in another team, and give a competition, a race to complete 100 meters of run. So you will think, आप सोचोगे बच्चे जो 100, सब मैं बच्चों को बता रही हूँ, दो ग्रुप है, 100 बच्चे का एक ग्रुप, दूसरे 100 बच्चे का एक ग्रुप, एक में तो गाइड रखा हुआ है और दूसरे में बिना गाइड का वो ग्रुप है। आपने एक 100 मीटर का रेस करवाया, ये वाला जो पहले वाला ग्रुप है जिसमें गाइड था वो भी उतने ही समय में पहुंचा, जो बिना गाइड वाला था वो भी उतने ही समय में पहुंचा। बट अच्छी बात और खराब बात क्या रही कि जब जो गाइड वाला बच्चा था, टीम था, उसमें किसी को भी पैर में चोट नहीं आई, सब लोग अपने अपने टाइम से पहुंच गए और बहुत ही आई को सूदिंग लगा, बहुत ही कंफर्टेबल देखने में लगा। और जो बिना गाइड वाला टीम था उसमें ऐसा लगा कि हो सकता है किसी के पैर में मोच आ गया। टाइमिंग वाज द सेम, एवरीथिंग वाज द सेम, बट हमें क्या सेटिस्फाई किया कि यस, this institution is giving a very disciplined manner में कुछ ऐसा चीज सिखा रहे हैं हमारे बच्चों को जो पेरेंट्स को भी सेटिस्फेक्शन होता है। और ऑन द सेम वे एक जो इंस्टीट्यूशन का एक ग्रेविटी होता है, जो डेकोरम होता है, दैट इज ऑल्सो फुलफिल्ड। तो दिस सेरेमनी इज लाइक दिस, मीन्स वी आर गिविंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द टाइनी shoulders of these kids to make them more comfortable for their groups, for their team, for their classmates, and on the same time for their parents that yes, my kids are going to be more responsible in comparison to earlier. Maybe हर साल ये चेंज भी होता होगा, तो सारे बच्चों का नंबर हो जाएगा, सभी लोग थोड़े थोड़े रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, हम पेरेंट्स भी बहुत खुश होंगे, टीचर्स विल बी ऑल्सो वेरी हैप्पी कि यस, this school is going to be in a good direction. हम बच्चों को क्या करना चाहिए? बच्चे को सपोज मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताती हूँ, आपकी मम्मा लंच बॉक्स में लंच देती है, आप फिनिश करते हो तो मम्मा बहुत खुश हो जाती है, आप नहीं फिनिश करते हो तो मम्मा कुछ नहीं बोलती, गुस्सा भी नहीं होती, बट अगर पूछती कि क्या बात हो गई, तकलीफ तो नहीं थी, क्या हो गया, कुछ बात थी क्या, तुमने फिनिश नहीं किया नाश्ता, पूछती होगी, सबकी मम्मा घर जाने पर पूछती है। तो ऐसा ये चीज़ मैं बोलना चाह रही हूँ बेटा कि जब हम कोई सिलेबस हमारे टीचर पढ़ा रहे हैं, कोई स्कूल में एक साल के कोर्स में आपको इतना चीज़ पढ़ना है, अगर आप नहीं पढ़ते हो तो सिर्फ मम्मा नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे लेसन का कि आपको एक साल में इतना चीज़ सिखाया जाना चाहिए, बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ योर एज, द ग्रेस ऑफ योर क्वालिटी ऑफ माइंडसेट। अगर आप वो उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाते हैं, मीन्स देयर इज सम डेविएशन, या तो आप मोबाइल ज़्यादा देखते हो या तो कुछ और ऐसा चीज़ है जिसमें ज़्यादा ध्यान लगाते हो, तो वो भी एक तरह का इंडाइजेशन है।
वो आप सोच रहे हो कि कुछ नहीं होगा, बट आगे 10 साल 15 साल बाद जाके इस नेशन को लॉस होगा आपके इस डेविएशन से। तो जब भी कोई टास्क दिया जाता है, इधर एज ए हेड बॉय, एज ए हेड गर्ल, और सभी स्टूडेंट पे एक बार तो जरूर है कि आपको एक साल में जो आपके सिलेबस दिए गए सबको पढ़ लेना है। डोंट बॉदर फॉर देयर मार्क्स, नहीं आएगा कोई बात नहीं, बट वी हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी सेंटेंस, ईच एंड एवरी chapters of your lesson. That is enough for the mental building of your age. So I request as well as I wish to you all कि आप अपने लेसन को अच्छे से पढ़ना। इसी में पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे, टीचर भी खुश हो जाएंगे, और ये नेशन भी इनडायरेक्टली बहुत बेनिफिटेड होगा। I wish you all a very good luck for your bright future and your great career and your other which you are going to। आपको एक चीज और मैं बताना भूल गई, आपको पता है कि इंडिया में 30 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं बिकॉज ऑफ चाइल्ड लेबर, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, और उस 30 मिलियन में से 25% लड़कियां हैं जो सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ पाती क्योंकि उसके पेरेंट्स को नहीं पता है कि लड़कियों को पढ़ाना कितना जरूरी है। तो जब आपको एक मौका मिला है, जैसा बाबू सर ने बताया कि इस स्कूल में लेडीज की मतलब लड़कियों की संख्या, फेमिन संख्या ज़्यादा है, तो इट इज़ योर वेरी मच रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है उसको पूरा करो। जितना सिलेबस आपको पढ़ने के लिए बोला गया उसको पूरा पढ़ना, और कभी भी आगे क्या होगा नहीं सोचना। बाकी के लिए आपके टीचर हैं, आपके प्रिंसिपल हैं, आपके गाइड, आपके पेरेंट्स, सारे लोग हैं। अंत में मैं ये कहूँगी, वन प्रोवर्ब इज देयर, गॉड मे नॉट बी एवरीवेयर सो दे सेंड मदर टू दिस अर्थ। आई वुड से a mother cannot be every time to save you from evil. A parents, those parents who are in a working, or every parent are in working stage, so parents cannot be with you every time, everywhere to acknowledge you, to save you from evil, so they send you to this school. I wish you good luck for that. Thank you. Myself, Harshit Singh Yadav. Thank you, respected dignitaries, dear parents, for your patience and precious time. We are extremely glad to have you all here today to celebrate hard work and success. Furthermore, we appreciate the valuable time and patience you have shown today. Additionally, I would like to thank our guests for their valuable time to sparkle our event. Coming to the end of the day, on behalf of my team, I wish you very happiness, success and peace in life. Thank you.